Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. And I'm Sneha Bakr, a birth keeper, birth doula. I know it's after a long time, was busy with births. So here we are in the month of Feb, and I am excited for today's storytelling session. As I said, I am a birth keeper and I support parents in their pregnancy journey. I support mothers in labor, birth, postpartum. I work in Mumbai, Navi Mumbai, Thane, and today my guest is Fatima Galaswala. So she is born and brought up in Dubai, I guess, and she stayed No, in Gulf, Jeddah, Jeddah. Saudi. So she stayed in Jeddah for a long time. She completed her studies in London, and then she got married and she shifted to Mumbai. Um, she has three beautiful daughters. So she called herself Umme Barira, mother of Barira, and she loves researching about anything happening in her life. So, and that's how, after her two cesareans, she um, came across a friend who introduced her to a VBAC, and henceforth, she started her journey into understanding VBAC, and then she is the one who's going to share the journey. So, welcome, Fatima, once again, and this is your platform now. I'll pin you. Thank you. So, I'm Fatima, and right now I'm 25 years old. I had my first baby when I was 19. So, that pregnancy was a bit sad, basically. I was not in contact with my parents for some reason, and then I had cried and missed my mom my whole pregnancy. And finally, in the ninth month, just before 5 days of birth of Barira, I met her, and then I finally went into the labor. It was like 37 weeks and 2 days that time. Then when I met my mom after 9 months, here I went into labor. So does this have to be in English, or can I speak Urdu as well? Both. Okay. Yeah. Urdu, English, कुछ भी चलेगा इंशाल्लाह. Okay. So when I went into labor, it was like pre-labor, not actual labor. I didn't lose any mucus plug, anything. It was just, you can say, practice labor, practice next first pregnancy and then first labor it was. And उसके बाद I went to the doctor. She said एक सोनोग्राफी करा लेते हैं as usual जो 9th month में जाते हैं, and then before labor start होता है तो वो लोग करवाते ही है to check baby's position. So Barira was free. तो आई मैंने उस वक्त कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा सिजेरियन हो सकता है, बिकॉज माई बेबी वॉज ऑलवेज लो, माई बेली वॉज लो, एंड देन आई यूज टू वर्क आउट अलॉट. तो आई नेवर थॉट कि मुझे सी सेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी. मैंने सोचा ही नहीं था सी सेक्शन के बारे में. बट व्हेन शी वाज ब्रीच, डॉक्टर वाज लाइक, अरे ब्रीच है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, सर्विक्स खुल भी गया है, एंड बेबी अगर बाहर आ गया ऐसे में तो उसका हाथ अटक जाएगा, पैर अटक जाएगा, मुंडा अटक जाएगा, द बेबी विल बी स्टक एंड एवरीथिंग. जो लोग के केयर टैक्टिक्स होते हैं ऐसा कहा उसने. एंड देन शी फोर्स्ड मी इनटू सीजेरियन. बेसिकली इट वाज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी. एज आई सेड, आई वाज 19. मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि सिजेरियन एक स्कैम होता है. आई स्टिल डिडंट वांटेड टू डू इट. माय मदर, वो यहाँ से मुंबई में नहीं थी, वो अंबरनाथ गई हुई थी. तो उन लोगों ने बहुत इनकरेज किया हमें कि वेट कर लो, हम पहुंच रहे हैं वहां पे, हम मिलके डिसीजन लेते हैं. बट माय फादर इन लॉ, ही इज अ बिट सेंसिटिव और बहुत जल्दी डर जाते हैं, और डॉक्टर्स पे बहुत यकीन रखते हैं क्योंकि मेरी फूफी सास डॉक्टर है. एंड वट एवर शी सेड, वो लोग उस बात पे यकीन कर लेते हैं. तो उस वक्त मेरे ससुर के कहने पे और सबके फैसले पे हमने करवा लिया सी सेक्शन. मेरी मदर टाइम पे नहीं पहुंच पाई, सी सेक्शन हो गया, बेबी डिलीवर हो गया. देन वो गुजर गया. पोस्टमार्टम भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज समझ नहीं आया क्यों हुआ क्या हुआ. खैर गुजरा गुजरा गुजरा. फिर फाइनली ये 16 months की थी आई थिंक वरीरा. आई प्लान माई सेकेंड प्रेगनेंसी, एंड फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, मुझे लगा वी बैक पॉसिबल है. बट
स्टिल आई वॉज इन टू डॉक्टर्स की डॉक्टर्स अगर रिकमेंड करेंगे तो करूंगी वरना नहीं करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा अगर अगर बेबी गुड पोजिशन में रहा तो आई विल डू इट और एल्स आई वॉन्ट। तो अगेन दिस बेबी वॉज ब्रीच। मैंने बर्थ एजुकेशन नहीं ली थी सेकेंड प्रेगनेंसी में, सेकेंड बेबी वॉज ब्रीच, देन मैंने सी सेक्शन करवा लिया और मेरे डैड का इंतकाल हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उस वजह से। एक तो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स, तो डिप्रेशन वॉज वेरी ऑब्वियस। तो ये भी सी सेक्शन हो गया। दिस वॉज मेजरली डर था कि अगर कुछ भी गलत होता है तो मेरे पीछे कोई भी नहीं खड़ा है मेरा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब मेरे डैड नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये थर्ड सेकेंड सी सेक्शन करवा लिया। देन 2 ढाई साल बाद देन आई गॉट आईयूडी बिकॉज आई डेंट वांटेड टू कंसीव फॉर टाइम बीन, क्योंकि इस सी सेक्शन के बाद मुझे एंडोमेट्राइटिस हो गया था एंड देन आई हैड अ फिट। तो बहुत डर गए थे हम लोग, सो वी हैड एन आईयूडी प्लेस सो दैट आई डोंट कंसीव वेरी सून। फाइनली 2023 September, नहीं अक्टूबर, आई स्टार्टेड ट्राइंग अगेन। आई थॉट कि ये थर्ड प्रेगनेंसी ऑब्वियसली सी सेक्शन ही होना है। उस वक्त मुझे तब भी इतना नॉलेज नहीं था, बट आई न्यू बर्थ क्लासेस करके चीज़ें होती हैं बिकॉज माई फ्रेंड शी लिव्स इन पाकिस्तान, शी हैज़ डन बर्थ क्लासेस, सो उसने मुझे इनकरेज किया था एक दो बार, बट आई वॉज लाइक यानी मैंने 2 प्रेगनेंसी कर चुकी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत होगी बर्थ क्लासेस की, मुझे तो सब पता है। सर आई स्टार्टेड ट्राइंग टू कंसीव। जनवरी में डॉक्टर्स ने मुझे डायग्नोज किया मेरा फेलोपियन ट्यूब एक ब्लॉक्ड है एंड वी विल हैव टू डू अ लेप्रोस्कोपी टू हैव इट रिमूव्ड। बट मेरा दिल नहीं माना। आई वाज लाइक नहीं, आई वाज सो हर्ट कि मैं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही थी एंड देन अब ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है और वो भी ये लोग निकाल लेंगे तो मेरे प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आई वाज वेरी हर्ट एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, सोचने लगी, बहुत दुआएं मांगने लगी। तो फिर मैंने तपस्या बाजी से बात हुई मेरी, हनीन ने, मेरी फ्रेंड जो पाकिस्तान में रहती है, उसने मुझे तपस्या बाजी का बताया। एंड देन तपस्या बाजी ने मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर का रिकमेंडेशन दिया, मैंने उनसे रब्ता किया एंड आई हैड दिस ट्रीटमेंट। एंड फिर एक सोनोग्राफी हुई, उसमें पता चला कि ये फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक भी नहीं है, मेरा फेलोपियन ट्यूब तो बिल्कुल ही हेल्थी है एंड इनफैक्ट मुझे अपेंडिसाइटिस कुछ बोलते हैं वो है। एंड फिर मेरा सिटी स्कैन हुआ फेब के मंथ में। तो दिस मंथ आई डिडंट ट्राई टू कंसीव बट और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आई वुड हैव कंसीव्ड। तो मैंने जाके सोनोग्राफी के बाद रिकमेंड किया था सीटी स्कैन कराने, मैंने जाके सीटी स्कैन करा लिया। सिटी स्कैन में अपेंडिसाइटिस कंफर्म हो गया एंड देन उसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहा। होम्योपैथिक डॉक्टर ने भी कहा मोस्टली इस चीज़ का लैप्रोस्कोपी सर्जरी होता है एंड देर इज़ वेरी लेस चांसेस कि ये होम्योपैथी से ट्रीट हो जाए। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है करवा लेते हैं लैप्रोस्कोपी। सो आई वेंट टू पुणे, मेरी फूफी सास है उनके पास, वो डॉक्टर रिकमेंड कर रही थी उस डॉक्टर के पास। देन अपॉइंटमेंट हो गया, शेड्यूल हो गया ऑपरेशन, और फिर प्री ऑपरेशन टेस्ट होते हैं उसके अंदर आई फाउंड दैट आई वाज प्रेग्नेंट। So that moment I knew कि this baby is protecting me from having a laparoscopic surgery. Maybe I don't need it actually. इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया so that I don't go for the surgery. Then 6 weeks की सोनोग्राफी होती है बेबी का वाइटल चेक करने के लिए। तो उस सोनोग्राफी कराने गई, सो द रेडियोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि तुम्हारी सिटी स्कैन हुई थी ना। आई वाज लाइक यस। कि सर तुम्हें पता है सिटी स्कैन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं? आई सेड क्या होते हैं? कि शी वाज लाइक गो एंड गूगल इट। मैंने कहा नहीं तुम जब बोल रही हो तो बताओ ना। तो वो बोलती नहीं जाके गूगल कर लो। तो मुझे बहुत उस वक्त गुस्सा आया एंड देन आई गूगल्ड, तो उसमें ये लिखा था 1001 बेबीज को उससे कैंसर के चांसेस होते हैं। तो आई हैव दिस जनरल फिजिशियन जिसके पास मैं अपनी हर सर्दी खांसी नॉर्मल उसके पास आती हूँ। आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड अगर बेबी को कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो तुम अबॉर्ट कर दोगी? मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी बिकॉज बिकॉज आई डोंट वांट टू, इट डज नॉट फील राइट। जैसे अब उसकी हार्ट बीट भी आ चुकी है, मैं क्यों अबॉर्ट करूंगी? जैसे मेरे हाथ में मेरे गोद में जो मेरे बच्चे हैं फिजिकली अलाइव वो है, वैसे ही मेरे पेट का भी बच्चा मेरे लिए। तो आई वॉन्ट अबॉर्ट। फिर भी वो मुझे हर डॉक्टर बोलती रही गायनाकोलॉजिस्ट की अबॉर्ट कर दो अबॉर्ट कर दो।
बट मैं नहीं मानी एंड मेरे हस्बैंड से मैंने मशवरा किया, उन्होंने किसी आलिम से मशवरा किया, तो उन लोगों ने कहा कि देखो ये सब जो गैब की चीज़ है, जो जो भी अपने वूम में, वही गैब की चीज़ है और वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं अंदर क्या है और क्या नहीं है। सो दैट इज द रीजन वाई हम लोग नहीं अबॉर्ट करेंगे एंड वी विल कीप द बेबी। तो एंड देन मुझे हाइपरथायराइडिज्म हो गया, जिससे मेरा वेट लॉस होने लगा एंड देन फर्स्ट 3 मंथ्स में नौजिया तो मुझे हर प्रेगनेंसी में रहा ही था, इसमें भी था। एंड आई वाज ओनली क्रेविंग स्पाइसी फूड, यानी मुझे स्पाइसी फूड से एलर्जी है बचपन से। आई गेट गैस्ट्रिक अटैक्स इफ आई ईट स्पाइसी फूड। बट दिस टाइम अराउंड जब मैंने स्पाइसी फूड खाया तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट दैट वाज द ओनली थिंग आई कुड कीप इन माई स्टमक, और एल्स हर चीज उल्टी हो जाती थी। तो 3 मंथ्स आई एट लॉट्स ऑफ स्पाइसी फूड एंड देन थर्ड मंथ की सोनोग्राफी आई 12 वीक की, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गई वो सोनोग्राफी का, जिसमें बच्चे का चेक करते हैं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी वाज नॉर्मल एंड बेबी वाज गुड हेल्दी। बट देन ब्लड टेस्ट भी होता है, वो ब्लड टेस्ट करवाया तो उसके अंदर बताया कि ना देयर इज चांसेस कि द बेबी माइट हैव डाउन सिंड्रोम। देन अनदर टेंशन, तब तो मुझे पूरे घर वाले कहने लगे कि अबॉर्शन कर दो। आई वाज लाइक नो, आई वोंट डू दैट एंड आई नीड टाइम टू थिंक, आई नीड मोर डॉक्टर्स ओपिनियन कि अबॉर्शन करना चाहिए या कुछ और भी चांसेस है। तो मेरी जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, मैंने उसको टेक्स्ट किया एंड आई टोल्ड हर कि ये आया है एंड देन शी सेड देखो ये एक सोनोग्राफी सॉरी ब्लड टेस्ट होता है, ये करवा लो, इसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बेबी को है डाउन सिंड्रोम या नहीं। इट वाज अराउंड लाइक 15,000 टेस्ट, 15,000 रुपीज टेस्ट। तो वो टेस्ट करवा लिया हमने, और वो टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले मेरी तपस्या बाजी से बात हुई। तपस्या बाजी ने मुझे इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि देखो कि क्या ये जो है ना, इसमें जो चीज बता रही है, इट्स जस्ट अ चांस, इट्स नॉट अ कंफर्मेशन कि ये तुम्हारे बच्चे को होगा। इन दैट इंस्टेंट जब ये रिपोर्ट आई थी डाउन सिंड्रोम की, तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हम कैसे टेक केयर कर पाएंगे एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे का, यानी स्पेशल नीड बच्चे का। तो आई वो गलत नहीं थे, ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी, बट आई सेड अगर अल्लाह ताला को देना होगा तो वो तो देंगे ही। लेकिन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी तपस्या बाजी से बात हुई और उन्होंने भी फिर दोबारा आलिम से बात किया, मशवरा किया, तो उनको भी उनके फ्रेंड्स ने यही जवाब दिया कि देखो ये सब चीजें गैब की हैं, ये अल्लाह ताला जानते हैं पेट में क्या है क्या नहीं है। और ये जो टेस्ट रिपोर्ट है इनको तो वैसे तो कराना ही नहीं चाहिए इस्लामिकली देखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को जो चीज़ देनी है वो अल्लाह ताला देंगे एनी हाउ। एंड समटाइम्स रिपोर्ट्स, समटाइम्स क्या, देख लो 90% तो सही होती है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गलती बता, जो एक्चुअल रिजल्ट नहीं होगा वो रिजल्ट बता देगा। तो बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग तपस्या बाजी ने भी ऑडियोज भेजी थी, वो ऑडियोज सुन के मेरे हस्बैंड को भी बहुत तसल्ली हुई कि नहीं हमें नहीं अबॉर्शन करना चाहिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग तक तो ठीक हो गए थे कि हाँ अबॉर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम जो ये जो 15,000 का एक टेस्ट है जो एक्चुअल में डिटेक्ट कर लेगा, वो भी हम करवा लेते हैं। सो आई हैड दैट टेस्ट एंड उस ड्यूरेशन जब तक टेस्ट रिपोर्ट आने में 14 दिन लगे थे पूरे, एंड मैं पूरा 14 दिन मेरी मॉम के पास थी बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू बी विद हर। तो मैं इनके पास थी एंड टेस्ट रिपोर्ट आया एंड इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह द बेबी वाज वेल। एंड दैट मोमेंट ऑनवर्ड आई टोल्ड माई सेल्फ अब हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अब हमें कोई सोनोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी। एक 5th मंथ की सोनोग्राफी होती है वो हम करा लेंगे एंड देन एक 7th मंथ की जो एंटीनेटल सोनोग्राफी होती है, आई थिंक, पता नहीं, वो हम करा लेंगे। वी डिड दैट सोनोग्राफी एंड आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट टेक एनी एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कैल्शियम आयरन फलाना फलाना कुछ भी नहीं लिया मैंने, सिर्फ फॉलिक एसिड लिया था शुरू के मंथ में, बस वही लिया था। एंड आई टुक होम्योपैथिक, तो बस क्या बोलते सेल सोल्ट्स, तपस्या बाजी ने बताया था। एंड देन आई वाज एडेड टू होम बर्थ ग्रुप एंड देन आई, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तभी मैंने हफ्सा बाजी का अमानी बर्थ कोर्स किया, चाइल्ड बर्थ कोर्स। एंड हफ्सा बाजी माशाल्लाह
उनके बातों में इतनी तासीर थी दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ कि आई विल बी एबल टू डू दिस, लाइक री बैक आफ्टर 2 C-सेक्शन। एंड फिर आई फाउंड, मैं ऐसे ही क्योंकि ऑब्वियसली मैंने हफ्साबाजी को फॉलो किया और ये सब पेजेस को मैं फॉलो कर रही थी, तो रैंडमली स्नेहा केम ऑन माई फीड। आई थिंक शी केम ऑन माई रील्स और ऑन माई फीड, आई डोंट नो। या तो शायद मैंने, मुबीना बाजी है हमारे बर्ड्स ग्रुप में, उनके थ्रू मैंने स्नेहा का ये देखा स्टोरी। एंड इत्तेफाक से शी हैड केम टू मीरा रोड, आई लिव इन मीरा रोड ना, सो शी हैड केम टू मीरा रोड टू फॉर बर्थ, फॉर अ होम बर्थ। तो आई वाज लाइक, ओह अल्लाह ताला ने तो मुझे रास्ता भी दिखा दिया होम बर्थ का, अब तो स्नेहा भी मिल गई है, आई विल डू दिस। फिर मेरी बातचीत शुरू हो गई। एंड 7th मंथ में मेरी ननद की शादी थी। उस वक्त मैंने सोनोग्राफी कराई, बेबी वॉज सेफेलिक, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी ब्रीच नहीं था। आई टुक ऑल दीज थिंग्स एज साइन कि मैं, ये मेरा साइन है दैट आई कैन डू दिस। एंड बेबी भी ब्रीच नहीं है, बट इवन इफ द बेबी वॉज ब्रीच आई वुड हैव डन दिस, not natural delivery. I wouldn't have gone for C-section even if the baby was breech. But yeah, और फिर इस प्रेगनेंसी में डिफरेंट ये भी था, माई क्रेविंग्स। एंड जितना मैंने मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में, जब मेरे अब्बू का एक्चुअल में इंतकाल हुआ था, जितना मैंने उस वक्त मेरे अब्बू को नहीं मिस किया था, मैंने इस प्रेगनेंसी में उतना ही ज्यादा मेरे डैड को मिस किया। आई वॉज लाइक क्राइंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। आई थॉट आई वुड नीड दिस, क्या बोलते हैं, थेरेपी। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, मेंटल डिबंक करने। मुझे लगा मुझे इस चीज की जरूरत है, बिकॉज आई वाज क्राइंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। और यानी वही है, अनहील्ड ट्रॉमास। और हमने बर्थ कोर्स में भी करा था कि वर्क ऑन योर अनहील्ड ट्रॉमास, कि दिस बिकम्स अ थिंग, अ बैरियर इन योर नेचुरल डिलीवरी, इससे तुम्हारा लेबर नहीं प्रोग्रेस होता है सही से। तो खैर मैं तो नहीं गई साइकेट्रिस्ट के पास, बिकॉज आई थॉट आई कुड डील विद इट नमाज और दुआओं से। एंड आई वाज डूइंग हफ्साबाजी कोर्स। एंड मेन सपोर्ट तो मेरा हफ्साबाजी थी, आई वुड से, बिकॉज इवन इफ आई यूज्ड टू टेक्स्ट हर इन द मिडल ऑफ नाइट शी वुड रिप्लाई मी। एंड बहुत तसल्ली होती थी, कुछ भी शक हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मुझे गैस्ट्रिक पेन इस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हो रहा था। इट वाज एक्चुअली मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, तो उस वजह से मुझे गैस्ट्रिक पेन बहुत हो रहा था, बट आई डिडंट नो दिस इन माय प्रेगनेंसी। तो मैं कुछ भी खाती थी, आई यूज टू गेट एसिड गैस्ट्रिक पेन, एंड देन आई वाज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली लूजिंग वेट, बट बेबी का वेट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा था, बेबी वाज डेवलपिंग वेल। तो एंड देन आई वाज क्रेविंग जंक फूड, ऑल दी जंक फूड। और स्पेशली बचपन के खाने, आई हैव ग्रोन अप इन जद्दा, तो मुझे जद्दा के खाने याद आ रहे थे, मुझे वही खाना था। मेरी बहन मुझे कुछ चीजें बना के देती थी, बट या ऑब्वियसली शी वाजंट ऑलवेज विद मी। तो उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड, डिलीवरी के दिन करीब आते गए। एंड जब भी मुझे गैस्ट्रिक पेन होता था, मुझे लोग बोलते थे, तुम तो यही पेन नहीं बर्दाश्त कर पा रही हो, तुम लेबर का पेन कैसे बर्दाश्त करोगी। एंड आई यूज टू टेल देम कि ये पेन में मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, बट इन लेबर पेन अल्लाह ताला हमें चांसेस देते हैं कि हम सांस ले सकें और थोड़ा उस पेन के ट्रॉमा से बाहर भी आ सके। एंड इट एक्चुअली हैपेंड। जब मेरा लेबर डे आया, एंड मेरा लेबर स्टार्ट हुआ रात के 3 बजे, उससे एक दिन पहले यार मैं बहुत चीजें मिस कर देती हूँ बीच में। आई वुड से So, पहले तो ये बताऊं कि 1 महीना मुझे फ्री लेबर चला, दिस वाज सो इम्पोर्टेंट, ये मैंने बताया नहीं। नहीं। 1 महीना मुझे फ्री लेबर चला। और लाइक अराउंड 35 वीक्स 5 डेज और 6 डेज, या 36 वीक्स में मेरी जो सेकेंड वाली डॉटर है उसको फिट आई। दोनों बेटियों को बुखार था। स्नेहा तुम अपना कैमरा ओपन रखो, ऐसा लग रहा है ना मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, तुम्हारा कैमरा ओपन है ना तो मुझे ज्यादा सही लग रहा है। तो या 36 वीक्स में मेरी दोनों बेटियों को बुखार आया। तो एक बेटी मेरी दवाई नहीं पीती है, बड़ी वाली, शी डज नॉट लाइक मेडिसिन। मुझे बहुत बुखार के लिए उसको जबरदस्ती रुला धुला के दवाई पिलानी पड़ती है। तो शी वाज लाइक अल्लाह ताला मुझे ठीक कर देंगे, हर ईमान इज वेरी गुड, मैं दवाई नहीं पीऊंगी, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर देंगे। शी वाज रिकवरिंग। उसके 3 दिन बाद मेरी छोटी वाली को बुखार आया। एंड बुखार के पहले दिन शी वाज ओके रिकवरिंग, लेकिन सेकेंड डे सडनली उसको फिट आ गई।
आई पिक्ड हर अप। मेरी सीढ़ियां हैं, मेरे घर में लिफ्ट नहीं है। मैं नंगे पाँव भागी, सीढ़ियों से भाग के उतरी इन माई 9th month, स्टार्टिंग ऑफ 9th month। मैं सीढ़ियों से भाग के उतरी, रोड पे नंगे पैर भागी कि मेरी बेटी को फिट आ गया है, कोई कुछ करे कोई कुछ करे। एंड देन फाइनली दे टुक हर टू द हॉस्पिटल। एंड यानी ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि मैं इतने तेज भाग के उतरी थी कि कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। द बेबी वॉज प्रोटेक्टेड, सब अच्छा था। एंड उसके वो एडमिट थी, नेक्स्ट डे शी गॉट डिस्चार्ज। उसी शाम मुझे ये पेन्स आने लगे। पेन्स आ रहे थे, आई थॉट दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस, जो मैं भागी थी। तो मैंने तपस्या बाजी से कांटेक्ट किया। शी सेड दिस लुक्स लाइक प्री लेबर बट दिस कैन गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक अ वीक। तो ये चल रहा था। आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट विद स्नेहा, विद तपस्या बाजी, विद हफ्सा बाजी, and everyone told me, yes, this is progress, this is progress, this is progress, but this progress was not getting progressed. Liver constant, Braxton Hicks, pains आते थे जाते थे, nothing leaking, no fluid going, nothing, बस पानी अच्छे से पियो, अच्छे से पियो, अच्छे से पियो। पानी पी रही थी एंड दिस वेंट ऑन फॉर अ मंथ। फाइनली स्नेहा टोल्ड मी कि तुमको ज़रूरत है कि तुम अपने ये जो स्पेस में हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली तुमको प्रेशर है कि डिलीवरी कब होगी, डिलीवरी कब होगी, एंड ड्यू डेट आने वाली है, कब हॉस्पिटल जाओगी। डॉक्टर ने मुझे ड्यू डेट दी थी 2 अक्टूबर की, यानी नहीं, मेरे 9th month का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था 2 अक्टूबर को। आई डिडंट गो फॉर इट बिकॉज आई डेंट वांटेड टू गेट इनटू एनीथिंग दे से, उनके टैक्टिक्स में नहीं जाना था। सो मैं 9th month में नहीं गई। इट वॉज वेरी हार्ड टू कन्विंस माई हस्बैंड। मैंने मेरे हस्बैंड वाला पार्ट बिल्कुल ही छोड़ दिया, बट एक्चुअल में मेरे हस्बैंड को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। मैंने ग्रेजुअली उनको कन्विंस किया। एंड देन एक मैंने मीटिंग रखी स्नेहा के साथ भी, स्नेहा आई। एंड उन्होंने यानी वो थोड़े शर्मीले हैं, तो स्नेहा उनसे बात कर रही थी, वो अपना मोबाइल में देख रहे थे, बट ही वाज लिसनिंग। एंड उस मीटिंग से फर्क पड़ा था। स्नेहा ने जब अपने मुंह से चीजों को एक्सप्लेन की थी, उससे उनको फर्क पड़ा था। एंड देन ही फाइनली गॉट ऑन बोर्ड ऑफ होम बर्थ, और एल्स ही वाज लाइक एंड मोमेंट पे हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। और शुरू शुरू में आई हैड ऑल्सो टोल्ड हिम कि ना स्नेहा हमारे साथ रहेगी एंड मोमेंट तक, उसके बाद हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। स्नेहा को पता चल जाएगा ना कि रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्नेहा विल बी लाइक माई डूला, तो शी विल बी विद मी। इनिशियली यही प्लान था। एक मिनट। यस। तो हाँ थी मैं स्नेहा। प्लान ये था कि आप लेबर घर मेरी पर म्यूट हो करेंगे। तुम। तो प्लान ये था कि आप लेबर घर पर म्यूट हो, करेंगे। म्यूट हो, म्यूट हो। तो कैन यू हियर मी? Yes, Sneha is audible. या प्लान ये था कि आप लेबर करेंगी घर पर और आप नहीं आ रही हॉस्पिटल। आवाज जो। ओके। तो प्लान ये था कि आप लेबर घर पर करने वाली थी एंड हॉस्पिटल जाके इन केस इफ देयर इज अ रप्चर वी विल बी टेकिंग यू टू द हॉस्पिटल। यस। प्लीज कीप पुटिंग इन बिकॉज मैं भूल जा रही हूँ बीच बीच में। मेरी अभी डिलीवरी हुई है ना, तो मेरे ब्रेन अभी कम काम कर रहे। यस, सो द प्लान वाज कि हम मैंने एक्चुअल में लिख के रखा था नोट्स में कि मैं स्टेप बाय स्टेप जा सकूं, नोट्स भी नहीं खोला मैंने। हमारा प्लान ये था, मैंने डॉक्टर से भी बात करके रखी थी कि इन केस रप्चर होता है और मैं रप्चर के ड्यूरेशन आपके पास आती हूँ, तो क्या आप मेरा ऑपरेशन करेंगी? शी वाज लाइक यस आई विल डू इट। एंड देन आई सेड अगर बेबी मैं पूरा लेबर घर, एंड शी हैड टोल्ड मी तुम पूरा लेबर घर पे करो। और आई आई हैड टू फाइंड दिस डॉक्टर। मैंने 3-4 डॉक्टर बदली तो फिर मुझे ये डॉक्टर मिली। शी सेड पूरा लेबर तुम घर पे करना, एंड जब ऐसा लगे कि अब बेबी आ रहा है कम हियर एंड आई विल डिलीवर योर बेबी। And so I was like, okay. And I told him, what if the baby borns at home? So she was like, नहीं होगा घर पे। I said, why?
यानी हो सकता है ना। शी वाज लाइक नहीं, जब तक मैं तुम्हारे अंदर फिंगर डाल के तुम्हारे सर्विक्स को खोलूंगी नहीं, तब तक बेबी बाहर आ ही नहीं सकता है। शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई इनके ही हाथ में है बच्चा गंडा, अल्लाह ताला तो कुछ करते ही नहीं है। यानी हमारा कोई काम नहीं है, इनका इनका जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक बेबी बाहर नहीं आ सकता है। सो डॉक्टर से ये बात करके रखी थी फॉर बैकअप कि अगर सी सेक्शन की जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, मिडिल ऑफ द नाइट भी आए तो ऑपरेशन हो जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। तो ये सब हस्बैंड को यकीन दिलाने की बहुत जरूरत थी, एंड स्पेशली इस वजह से मुझे हर विजिट में मेरे हस्बैंड को लेके जाना पड़ रहा था कि मैं उनको तसल्ली दिला सकूं दैट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर इज डॉक्टर। एंड स्टिल माई फादर इन लॉ, ही सो सेंसिटिव इन ऑल दिस बिकॉज उनकी बहन डॉक्टर है। He did not know. My sass knew, but he did not know I was going to home birth. He found out like a week before. Yeah. फिर जब ये मेरा ब्रेक्सटन हिक्स चल रहा था, तब मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई। मेरे हस्बैंड ने बहुत इनकरेज किया कि जाते हैं दिखा लेते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। एंड इनफैक्ट जब मुझे दर्द होता था मैं मेरे हस्बैंड को बताती ही नहीं थी। ब्रेक्सटन हिक्स जो होते थे मैं उनको नहीं बताती थी, उनको पता ही नहीं कि मुझे ब्रेक्सटन हिक्स हो रहा है। मैं कहती थी हाँ यानी ये सिम्टम्स है कि लेबर आने वाला है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। आई हैव टॉक टू स्नेहा एंड हफ्साबाजी एंड तपस्याबाजी, आई एम इन कांटेक्ट विद देम, दे विल नो इफ माय लेबर स्टार्ट्स। देन ये चीज मैं डॉक्टर के पास वो मंथ जब ब्रेक्सटन हिक्स हो रहे थे मैं एक बार भी नहीं गई, बिकॉज आई न्यू 9th मंथ में ये लोग वो पीवी करते हैं एंड पीवी से इनको पता चल जाएगा समथिंग इज हैपनिंग। इसीलिए मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। एंड मैं मेरी ड्यू डेट आके भी चली गई 23rd अक्टूबर। तब मेरी स्नेहा से मीटिंग हुई थी, स्नेहा के घर पे। एंड आई वाज स्टिल प्रोग्रेसिंग एंड द बेबी हैड केम लोअर। उसकी हार्ट बीट से स्नेहा कुड से दैट पहले इट वाज हायर अप, नाउ द बेबी इज कमिंग लोअर एंड लोअर। एंड देन ये चीज तसल्ली थी चलो कुछ तो हो रहा है। एंड एवरीवन वाज आस्किंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड देन मेरी फूफी सास भी मुझे कॉल करती थी पुणे से, एंड शी यूज्ड टू आस्क मी क्या हो रहा है, विल शी कम ऑन टाइम, विल शी बी देयर, कुछ रप्चर हुआ। मेरी फूफी सास ने मुझे बहुत बार डराया था कि अगर रप्चर हो गया तुम ब्लीड आउट हो जाओगी और 2 मिनट के अंदर तुम मर जाओगी। 2 मिनट के अंदर, ओनली यू हैव 2 मिनट। सो आई सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हस्बैंड को भी वो ये कहती थी। इनफैक्ट मैं उन्हें कोई जवाब ही नहीं देती थी, बिकॉज आई थॉट किसी को भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमें करना है वो हमें करना है, और हमें पता है, हमने एजुकेशन ली है। तो क्या जरूरत है किसी के भी टैक्टिक्स में आने की। वो तो डॉक्टर है, उनका हर चीज एंड ये होता है कि मौत है, तो तुमको मौत से बचाना है, उसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बल्कि तो मौत तो बरहक है भाई, होनी है तो होनी है। देन ये चीज स्नेहा से मीटिंग के बाद स्नेहा सेड रिलैक्स एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट लेबर, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि लेबर कब आएगा, अपने माइंड को रिलैक्स करो, ये करो वो करो। एंड देन आई डिड। मैंने लेबर की प्रैक्टिस करना भी छोड़ दी, मैंने एक्सरसाइज करना भी छोड़ दी। मैं लेबर को इनकरेज करने के लिए एक्सरसाइजेस भी कर रही थी, मैंने वो भी करना छोड़ दी कि नहीं अब कुछ भी नहीं करूंगी, आई विल रेस्ट। हफ्साबाजी ने भी मुझे यही कहा कि तुम ज्यादा सोचना बंद करो, इसीलिए तुम्हारा लेबर आ नहीं रहा है कि ना तुम बहुत सोच रही हो, तुम रिलैक्स करो, हर चीज छोड़ दो एंड रिलैक्स। सो आई वॉज रिलैक्सिंग। फिर मुझे ऐसा लेबर पेन्स जैसा आ रहा था, देन स्नेहा सेंट मी दिस मेडिटेशंस, शी सेड लिसन टू दिस एंड स्लीप, आई लिसन टू इट एंड आई स्लेप्ट। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया, चीजें बढ़ती गई, एंड फाइनली एट 40 वीक्स एंड टू डेज, आई थिंक 2 और 3 डेज, मेरे हस्बैंड बहुत इंसिस्ट कर रहे थे सोनोग्राफी करने के लिए। सो मैंने किससे पूछा था, हफ्साबाजी से पूछा कि क्या लगता है आपको, करवा लूं। शी सेड करवा लो ना, करवाने में क्या जा रहा है। तो मैंने करवा लिया। एंड उसमें मेरा फ्लूइड कम बताया, 5 पॉइंट कुछ था। एंड शी वाज लाइक तुम क्यों इतना वेट कर रही हो, जो रेडियोलॉजिस्ट थी, तुम क्यों इतना वेट कर रही हो, देयर इज नो पॉइंट, और तुम्हारे बेबी का वेट भी कम है। माई बेबीज वेट वॉज शोइंग 2.8 kg आई थिंक, एंड माई बेबी वॉज मेजरिंग 36 वीक्स। यानी अभी मेरे पास पूरा महीना है अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी, बट अकॉर्डिंग टू माई ड्यू डेट आई एम पास्ट। तो मैं आई वहां से एंड आई वाज लाइक
मैंने तपस्या बाजी से बात की, हफ्सा बाजी से बात की, स्नेहा को भी भेजा मैंने। तपस्या बाजी ने कहा, हफ्सा बाजी ने कहा बहुत सारा पानी पियो। स्नेहा तुमने क्या कहा था मैं भूल गई। तुमने मजाक उड़ाया था कि अभी तो तुम्हारे पास 1 महीना है। रिलैक्स करो। हाँ, मैंने भी यही बोला कि पानी पियो, आराम करो। हाँ, पानी पियो आराम करो। तो बस पानी पीना शुरू कर दिया। एंड देन उस दिन अ, मैं रात भर सोई नहीं थी फॉर सम रीजन। तो फिर नेक्स्ट डे मैं सोनोग्राफी कराने गई थी, तो सोनोग्राफी करा के आई एंड आई वाज लाइक अब मुझे सोना है। तो मेरी सासू माँ ने मेरी दोनों बच्चियों को मेरी ननद के घर छोड़ दिया, मेरी बच्चियां वहां थी और मेरी सासू माँ अपने मायके गई थी। जूम उनके भी घर हेलो में जी। किसी को बेबी हुआ था। एमआरसी जीटी है। तो उस दिन आई वॉज एबल टू रेस्ट होल डे। पूरा दिन मैं सोई मगरिब तक। मैं मगरिब में उठी। आई वॉज क्रेविंग मिठाइयाँ, लड्डू, दिस बूंदी के लड्डू। सो आई वेंट विद माई हस्बैंड। मैंने अपनी डॉटर्स को पिकअप किया ननद के घर से। फिर मैंने बूंदी के लड्डू खाए, रसमलाई खाई और स्कूटी पे बहुत घूमी। एंड स्कूटी पे घूम रही थी एंड ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ बम्प्स ऑन द रोड। तो वो बम्प्स मुझे बहुत लग रहे थे। आई वाज लाइक चलो अब घर जाते हैं, बहुत ज्यादा घूम लिए। देन वी वेंट होम। फिर एज यूजुअल गैस्ट्रिक पेन हो रहा था। मैंने गैस्ट्रिक की दवाई खाई एंड देन बूंदी के लड्डू भी खाए, पानी पिया और सो गई। एंड देन 3:30 आई वोक अप, अराउंड 3:15, 3:30 टू समथिंग। एक मिनट। या तो 2:30, नहीं 3:30 आई woke up to something coming out of my vagina, and I knew it was I didn't know it was water breaking. I thought maybe discharge आ रहा होगा बहुत ज्यादा। आई वेंट टू द टॉयलेट। जैसे ही मैं खड़ी हुई बहुत सारा पानी आने लगा एंड इट वाज क्लियर फ्लूइड। सो फर्स्टली आई टेक्स्टेड हफ्सा बाजी, सेकेंडली आई टेक्स्टेड स्नेहा, and then Hafsa Baji got back to me. She said, "Yeah, it's water leaking, and let Sneha know. Your water broke. Let Sneha know." तो मैंने स्नेहा को मैसेज कर दिया कि हाँ वाटर ब्रेक हो गया है। स्नेहा ने अपने हस्बैंड का नंबर दे दिया इन केस ऑफ इमरजेंसी। और दोनों ने ही मुझे कहा रेस्ट, ड्रिंक वाटर एंड रेस्ट, इट्स जस्ट स्टार्टिंग। तो कितना बज रहा था? 3:30, 3 बज रहा था ना, राइट। देन आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल, बट कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गए थे। तो हर थोड़ी देर पे 10-15 मिनट पे मेरी आंख खुल जा रही थी बिकॉज कॉन्ट्रेक्शन हो रहे थे। तो इस तरह करते करते फजर हो गई। एंड आई डेंट प्रे फजर बिकॉज आई वॉजंट श्योर इफ आई कैन प्रे फजर इन दिस, सो आई डेंट प्रे फजर दैट डे। देन मैंने मेरी बेटी को उठा के स्कूल नहीं, फिर मैं नीचे गई। आई थॉट आई वुड गो एंड हैव सम ब्रेकफास्ट एंड मे बी वॉक अ लिटिल बिट। तो मैं नीचे गई। फिर आई वेंट टू हैव ब्रेकफास्ट इस पे स्कूटी पे। एंड देन आई हैड ब्रेकफास्ट इडली। एंड सिंस आई वाज ऑन स्कूटी, आई स्टार्टेड माय वाटर स्टार्टेड लीकिंग मोर हेवीली। सो और बहुत ज्यादा पानी जाने लगा, जा रहा था। सो देन आई सेड ओके, वॉक वॉक तो नहीं हो सकती है भाई, इतना पानी जा रहा है, घर जाना पड़ेगा। देन मैंने नारियल पानी लिया, तीन तीन नारियल पानी लिए कि आई विल ड्रिंक नारियल पानी जितना हो सके। एंड देन आई वेंट होम। मैंने बच्चों का कबर्ड मुझे सही करना था, वो मैंने सही किया। इनके कपड़े सही किए। आई सेड जो भी काम होता है कर लेती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। तो बच्चों के कपड़े सही किए, मेरी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस किया, फिर उसको उठा के स्कूल भेजा। एंड देन आई स्टार्टेड रेस्टिंग। फिर मैं सो रही थी, कॉन्ट्रेक्शन आ रहा था, उठ रही थी, पानी पी रही थी। एंड फिर दूध में घी डाल के, हल्दी वाला दूध घी डाल के पिया। एंड देन सो रही थी और अलग अलग पोजीशंस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, उठ जा रही थी। एंड देन अराउंड 12 o'clock मेरी एक और डूला थी, रिजवाना, शी वांटेड टू बी देयर इन माय बर्थ। देन आई कॉल्ड हर, शी इज अ फ्रेंड। देन आई कॉल्ड हर and she came. She started helping me with just managing the pains. स्नेहा ने फिर भी उसे कहा कि उसके हर कॉन्ट्रेक्शन पे अभी उसको प्रेस प्रेस करके मत करो, अभी उसको खुद जितना ले सकती है लेने दो, जब उसको जरूरत रहेगी तब करना।
तो जब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, जब आई फेल्ट लाइक नहीं, आई नीड समवन टू प्रेस, देन शी वाज प्रेसिंग और एल्स आई वाज जस्ट मैनेजिंग ऑन माई सेल्फ. एंड देन आई हैड लंच अराउंड 3 o'clock आई थिंक. लंच खाया. आई जस्ट एट लॉट्स ऑफ चिकन बिकॉज मुझे चावल वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बस चिकन खा लिया. चिकन के पीसेस खाया. मेरी बहन भी आ गई थी. शी मेड दैट, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अरबिक फूड खाने का दिल करता है, तो उसने आके मेरे लिए वो चिकन बनाया था, वो खाया मैंने. एंड देन चल रहा था. फिर ड्यूरिंग लेबर किसी का भी फोन बज रहा था या कुछ भी हो रहा था, आई यूज्ड टू गेट सो एंग्री कि यार तुम लोग अपना फोन साइलेंट पे कर दो, यहाँ पे सुकून से लेबर भी नहीं करने दे रहे हो, कॉल्स आ रहे हैं तुम्हारे को. तो फिर वो चीज हुई. सब बेचारे लोग मेरा टैंट्रम उठा रहे थे. मेरी Fatima, बहन मेरा टैंट्रम. your husband was freaking out because आपका water leak हो ही जा रहा था. यस. So how ये did तो Rizwana help your husband calm down? मेरे हस्बैंड आए ना 4 बजे, फिर जब मेरी बेटी को स्कूल से लेके, तब वो 4 बजे नहीं आए, 5 बजे आए. तो ही स्टार्टेड गोइंग लेफ्ट एंड राइट. इतना पानी जा रहा है, कल डॉक्टर ने कहा था कि पानी कम है, फिर पानी खत्म हो जाएगा, बच्चा कैसे बाहर आ जाएगा, बाहर कैसे आएगा बच्चा, ये वो. ही वॉज वेरी फ्रीकिंग आउट. तो फिर हफ्सा बाजी ने भी एक वॉइस नोट भेजा मेरे हस्बैंड के लिए, जो मैंने उनको सुनाया. उसके बाद रिजवाना ने जाके उनको समझाया. क्या समझाया आई डोंट रिमेम्बर एंड आई डोंट नो. बट रिजवाना ने जाके उनको डील किया एंड ही वाज देन काम. ओके फाइन. फिर वो दोबारा चले गए, क्योंकि वो बहुत रेस्टलेस थे कि मैं क्या करूं, और वो मुझे दर्द में देख नहीं पा रहे थे. फिर वो बाहर चले गए मेरे साथ, और मैं खुद नहीं चाहती थी कि वो भी मेरे साथ रहे, बिकॉज आई न्यू ही वुड गेट हाइपर. वो मुझे पेन में देख नहीं पाएंगे, हाइपर होंगे, एंड देन वही इनकरेज करेंगे कि हॉस्पिटल चलो. तो हफ्सा बाजी ने भी उन्हें वॉइस मैसेज में कहा कि यानी वाटर ब्रेक होने के बाद भी यू कैन बी एट होम, लाइक 3-4 दिन भी जाता है आई थिंक, है ना. तो हफ्सा बाजी ने भी ये बात कहा उन्हें कि कोई इशू नहीं है, वाटर जाने के, ब्रेक होने के बाद कंप्लीटली पानी चला गया उसके बाद भी घर पे रह सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा बेबी को, द बेबी विल कम आउट इवेंचुअली. सो फिर क्या हुआ था स्नेहा? So I was just keeping a track. आप लोगों से मतलब आपसे नहीं, रिजवाना से बात करके एंड आयशा But से you बात made a group. करके. जी. Yeah. एंड देन एक दो वीडियो कॉल मैंने कर लिया था दिन भर में टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड आई अंडरस्टूड Yeah, we had a दैट conversation on video call as well. to just see कैसे how चल you're doing, to just see how you're रहा? progressing. And then I knew that when you are not able to, when you say that Yeah. ab Sneha ko bulao, and that was the time I हाँ. would leave. So Yeah. you did mention in the evening after Maghrib that, ab Sneha ko bulana chahiye. Yes. And that was the time when I left. And it was super, super, super traffic. It was Diwali time and I was trying to manage and reach early, but उतना ही time हर एक चीज ने मेरा लिया. जैसे मेट्रो ने टाइम लिया, ट्रैफिक ने टाइम लिया, ट्रेन ने टाइम लिया. फिर And I तुम was 9 बजे पहुंची. and yeah, and I was just telling them, don't worry, if the baby comes out, just keep a towel ready and take care of the baby. I'll reach. So they were keeping updated. So when I reached by 9, then I saw that yeah, she was getting intense pain. She had mother and sister around. Rizwana was there. So I did some rebozo. I did some essential oil. She was getting this cold. So we used black peppermint oil. So वो black peppermint oil use करके she felt better. She was smelling वो it and बहुत she was बेटर था लेबर yes, में. yes. So peppermint oil बहुत उनको राहत दे रहा था. And I was and then I realized that yeah, the room's vibe is getting a little tense, and that's not the space where you want to be. एंड जैसे मैं पहुंची तो मेरे पहुंचने से जो एक्सपेक्टेशन आ जाती है लोगों की, कितना टाइम लगेगा, किधर तक पहुंचा है बच्चा, क्या हार्ट बीट चल रही है. So I did my vital check. Baby was fine. I mentioned it to the in-laws of her, and they were like, okay, but that look which is always given by the parents is different. ये क्या ही कर रही है, what is she doing? She's doing nothing, kind of thing. So then I decided that let's shift the space. Let's go to a go to your bedroom, which is downstairs, and
देन देखते हैं लेबर का कैसे होता है करके, एंड देन या सो यही हुआ। एंड देन जब स्नेहा स्नेहा के आने से पहले मेरी मॉम आई अराउंड 5:45 शाम में। एंड जब वो आई शी वाज encouraging मी टू वॉक एंड डू स्क्वाट्स और समथिंग, डक वॉकिंग। बट उस वक्त आई डेंट फील लाइक डूइंग इट। तो आई टोल्ड हर नो, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई वोंट डू इट नाउ, आई वांट टू रेस्ट। आई वॉज रेस्टिंग। ऐसे मैं लेटी हुई थी, लेबर पेन आ रहा था तो थोड़ा उठ जा रही थी। आई वॉज ऑन माई ऑल फोर्स जब भी लेबर पेन आ रहा था। एंड आई वॉज रेस्टिंग, या तो मेरी मॉम के ऊपर लीन करके रेस्ट कर रही थी इस तरह। फिर जब मगरिब का टाइम हुआ, मगरिब बाद आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई नीड टू वॉक। खुद ही आया कि नहीं, आई नीड टू वॉक। और जब ही हमने स्नेहा को बोला, मैंने I needed to walk, so I started duck walking. I started walking and doing everything whatever I thought could help the baby come down. ये किया। उसके बाद स्नेहा को मेरी बहन ने वीडियो भी बना के भेजी कि देखो इसका भी ये स्टेट है। उससे भी स्नेहा को समझ आया कि हाँ अब मुझे जाना है या कितना टाइम बाकी है। यानी कि अंदाजा लगाना, बट एक्चुअल में कितना टाइम बाकी था वो तो सुन के शौक ही हो जाएंगे कुछ लोग कि हमारे एक्सपेक्टेड टाइम के कितने टाइम बाद बेबी आया। फिर अराउंड 11 बजे मेरे फादर इन लॉ गए। और इस वक्त ही मुझे ये पेन्स मेरे बढ़ गए, इंटेंस हो गए। आई वांटेड टू शाउट, आई वांटेड टू यानी लेट आउट द पेन विद माय वॉइस। सो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। तो हम लोग एक रेंट, ये तो मेरा एक्चुअल में मेरा ससुराल वाला घर था, और उसके नीचे हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया था फॉर स्पेस, एक्सटेंडेड स्पेस अ लिटिल। तो फिर हम वो वाले घर में गए, वहां पे मेरा कमरा था, हम उस कमरे में गए एंड आई स्टार्टेड लेटिंग आउट द वॉइस, जो मैं ऊपर वाले घर में मेरे हस्बैंड के और मेरे फादर इन लॉ के डर से नहीं ले रही थी कि वो लोग डर के मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो मेरे नीचे के घर में जाके अपने स्पेस में जाके आई स्टार्टेड लेटिंग आउट द वॉइस, द पेन दैट वाज हेल्प मी टू कोप। देन धीरे धीरे देन एट दैट पॉइंट, वैसे तो उससे पहले से ही स्नेहा वाज डूइंग रिबोजो एंड ऑल दैट आई नीडेड, एंड देन हिप स्क्वीजेस। बट देन आई नीडेड मोर हिप स्क्वीजेस। एंड धीरे धीरे 12 बज गया, मेरी बहन अपने घर गई थी फ्रेश होने। स्नेहा ने उसे बुलाया, उसने कहा आई थिंक द बेबी इज गोइंग टू कम एनी टाइम नाउ। देन मेरी मेरी बहन ने बुलाया, भाई इसको उठा ले। मेरी बहन ने उसको बुलाया, नहीं स्नेहा ने मेरी बहन को बुलाया। एंड देन स्टिल लेबर वाज स्टिल प्रोग्रेसिंग। फिर अराउंड 2 o'clock था, आई वेंट इनटू द टॉयलेट एंड तब जाके आई स्टार्टेड लूजिंग माय म्यूकस प्लस एट 2 o'clock। तब मेरा म्यूकस प्लग जाने लगा। एंड देन आई वांटेड हॉट वाटर ऑन माय बैक, सो आई वाज कॉन्स्टेंटली हैविंग हॉट वाटर ऑन माय बैक। इतना मैंने हॉट वाटर लिया कि मेरा टाकी का पानी फिनिश हो गया। भाई मेरा रोड में पानी के बहुत मसले। एंड यू आर ओनली ऑन द टॉयलेट सीट, मतलब आपको या सिर्फ उस पे ही बहुत, बैठना यस, मैं टॉयलेट सीट पे ही थी कॉन्स्टेंटली पोरिंग वाटर। स्नेहा वाज पोरिंग वाटर, देन माय सिस्टर वाज पोरिंग वाटर। यानी बेचारों ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे मेरे टेंट्रम ही उठा रहे थे। तो फिर उसके बाद आई डिडंट वांट टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। फिर जब मैं टॉयलेट सीट पे उतर के आई स्टार्टेड फीलिंग द पुशिंग फीलिंग। और दैट वाज अराउंड व्हाट टाइम स्नेहा? after 2 hours. So ढाई तीन बजे you were in the toilet for 2 hours. आपको पता इन भी नहीं फॉर चला। 2 हाँ, हाँ, मुझे पता भी नहीं चला बिकॉज yeah. जब भी पेन जा रहा था आई वाज फॉलिंग asleep। जब भी पेन जा रहा था आई वाज फॉलिंग asleep बिकॉज बहुत देर हो गया था। लेबर स्टार्ट हुए अराउंड 12 आवर्स प्लस हो गए थे, 20 आवर्स प्लस हो गए थे, सॉरी। एंड देन मैं बार बार सो जा रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ टाइम जा रहा है। हाँ लेकिन पेन एक एक महसूस हो रहा था, पेन का हर एक सेकंड महसूस हो रहा था। देन आई फेल्ट द, और इस ड्यूरेशन में हमने बेबी की हार्ट बीट नहीं चेक की, एक बार भी नहीं चेक की, क्योंकि दिल भी नहीं किया चेक करने का। फाइनली मेरे खुद के इंस्टिंक्ट हुए दैट आई वांट टू चेक वेयर द बेबी इज, सो आई चेक्ड माई सेल्फ। आई फेल्ट द हेड बट आई वाजंट श्योर। देन आई टोल्ड स्नेहा दैट आई एम फीलिंग समथिंग। देन स्नेहा checked me and the head was there, so it was still very high up, like It this wasn't much. high up. It wasn't high up, एक but बार हाँ. नहीं इतना था, Hmm. बिकॉज इतनी फिंगर आई वॉज फीलिंग अंडर। तो इट वॉज हाई अप, स्टिल इट वॉज फॉर मी, इट वॉज हाई अप बिकॉज मेरे को 4 घंटा लगा उसको वहां से बाहर आने में।
So the pushing phase went on for like 3 hours at least, 3 4 hours, and I was constantly pushing. I felt like I have to poop. And whole pregnancy I knew, मुझे जब भी constipation होता था ना, I used to think this must be the feeling of the baby coming out, and it was actually like that, that you have to poop but you cannot poop. So that was like that. And I was pushing for 3 hours, and 3 hours तक push करते करते मैं बाथरूम में ही थी. मैंने बाथरूम में एक ब्लैंकेट भी बिछा लिया कि ना जब मुझे रेस्ट करना होगा, आई विल कीप माई हेड ऑन द ब्लैंकेट, एंड जब पुशिंग फील आएगा देन आई विल गेट एंड पुश. तो एंड मुझे लगा था बाथरूम में बेबी आ जाएगा बाहर, बिकॉज आई वॉज पुशिंग सो लॉन्ग, तो इसीलिए मैंने ब्लैंकेट भी बिछा लिया था, लेकिन नहीं, नहीं आया बेबी बाथरूम में बाहर. because your mama was उनको परेशानी हो रही थी. She was like बहुत परेशान. बाथरूम में कैसे हो सकता है स्नेहा. मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता है, शी इज कंफर्टेबल देयर. शी लाइक नहीं 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 नहीं, बाथरूम में नहीं, आप उसको बाहर बुलाओ. And ऊपर से I didn't want it to have any piece of cloth on my body. And by that I know, yeah, this baby is coming, because हमने birth education में पढ़ा था, when you will forget your haya, that means your baby is coming and you are in actual labor. So I didn't want to have any piece of cloth, and my mom was also worried for that. कि यार इसने कुछ पहना हुआ नहीं है, इसको कुछ पहनाओ, इसको कुछ पहनाओ, इसको कुछ पहनाओ. I was like, mom please relax. नेहा को पता है क्या करना है, आप प्लीज बैठ जाओ. Yeah. And she even told me later that you embarrassed me so many times. मैंने कहा मम्मा मैं क्या करूँ, मैं लेबर में थी और मेरा जो चीज दिल नहीं कर रहा था, I didn't want to do that. फिर भी उन्होंने काफी रिस्पेक्ट किया. उन्होंने अपने इनपुट्स दे रही थी, लेकिन उतने नहीं दे रही थी. हाँ, लेकिन कपड़ा वगैरह Yeah. ऑब्वियसली तो एक. बेसिकली जब आपको मैं बाहर लेकर आई, आपको मैंने वापस से कपड़े पहनाई एंड काइंड ऑफ you were there on the bed trying to lie down. मैंने थोड़ा compression किया. Your sister was also there, and later you were not able to bear it and you wanted to be on all fours. ठीक है, क्या all fours में फिर मुझे आपका मतलब बेबी का हेड दिख रहा था हम लोग. And then you kind of wanted your husband to be. ना जैसे तुम्हारी मम्मा ने सुना, और अब वापस तुमने कपड़े निकाल दिए थे, जैसे तुम्हारी मम्मा ने सुना कि हस्बैंड आ रहा है, शी इज लाइक गेटिंग ड्रेस, इसको पहनाओ. मैंने बोला उसका हस्बैंड है. तो नहीं 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 नहीं. अरे बोले तुमको शर्म आ रही है कि उसको शर्म आ रही है, लेकिन अब करूँ क्या मैं. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हैंडलिंग ऑफ योर मदर. टॉवल रखा हमने मेरे ऊपर. हाँ, हैंडलिंग योर मदर एंड हैंडलिंग यू. आई वॉन्टेड हर टू बी देयर, बट या उनका थोड़ा ख्यालात पुराने टाइप का, तो ये चीज थी. उन लोग वो हया का बहुत ख्याल रखना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है. तो इट वाज जस्ट. फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, ही स्टार्टेड क्राइंग. वो तो रोने ही लगता है. ये एक बार भी नहीं कहा उन्होंने हॉस्पिटल जाने. मेरी मॉम ने ड्यूरिंग लेबर कहा कि ये पुशिंग फेज ही, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाना है बेटा ऑपरेशन कराने. मैंने अपने दिमाग में सोचा कि यार इतना मैंने दर्द झेल लिया, मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो. अम्मी ने कहा वैसे ही तुमको तसल्ली देने के लिए पूछा था मैंने, एक्चुअल में नहीं ले जाती. मैंने कहा, अच्छा अम्मी. उस वक्त तो खैर मैंने ना कह दिया था बस. और एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्याल नहीं आया दैट आई वांट टू गो टू द हॉस्पिटल टू गेट दिस बेबी आउट. आई न्यू दैट बेबी इज गोइंग टू कम. कहाँ जाने वाला है, आना तो बाहर ही है. एंड इस ड्यूरेशन में हमने ज्यादा हार्ट बीट भी नहीं चेक की. हार्ट बीट 1 से 2 बार ही चेक हुई थी. उसके अलावा वी न्यू द बेबी इज डूइंग फाइन एंड द बेबी इज लुकिंग एट मी. फिर आई स्टार्टेड पुशिंग. माई हस्बैंड के, मेरी स्नेहा ने मेरे हस्बैंड को बोला मेरा हाथ पकड़ के बैठने. मैं भी वही चाहती थी. आई वॉन्टेड हिम टू सी द बेबी कम आउट एंड विटनेस द डिवाइन बर्थ ऑफ माइन. इट्स एक्चुअली समथिंग आजकल के आदमी नहीं विटनेस करते हैं, सो दे मस्ट. तो उन्होंने किया विटनेस, एंड इट वाज mesmerizing for him also कि this is something that happens. And in fact जब मैंने ये किया ना, he started even encouraging his friends कि यार तुम एक बार वी बैक ट्राई करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी भले ही ऑपरेशन हो जाए. या सो वो कॉन्स्टेंटली मेरे बाजू में बैठ के मेरा हाथ पकड़ के मुझे पानी सिप करवा रहे थे. एंड ही वॉज रिसाइटिंग कुरान, ही वॉज रिसाइटिंग दुआज, मेरे ऊपर पढ़ पढ़ के फूकना, मुझे पानी सिप कराना. देन माई मदर इन लॉ पानी गर्म करके लाना. एवरीवन वाज ऑन हैंड्स, यानी जो कर सकते हैं वो हर कोई कर रहा था. मेरी बहन गरम गरम पानी में टॉवेल डाल के स्नेहा को दे रही थी टू फॉर माई पेरिनियम.
कि मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले, एंड दैट फेल्ट हेवनली लिटरली पूरे लेबर में। तो जो हॉट कंप्रेशंस थे, एंड देन फाइनली बेबीज हेड केम आउट, यानी हेड का टॉप पार्ट आई सॉ, एंड देन फाइनली कुछ रिलैक्स हुआ, एंड आई टोल्ड स्नेहा यार अब तो इसको निकाल लो बाहर, अब नहीं हो रहा, बिकॉज दैट रिंग ऑफ फायर वेर इट फील्स लाइक दैट इट इज गोइंग टू टीयर अप। एट दैट पॉइंट आई टोल्ड स्नेहा भी इसको हाथ डाल के निकाल लो, इसको खींच लो। स्नेहा said no, the baby will come by itself. As Sneha constantly recited नाथ and encouraged the baby to come out, और मुझे भी कह रही थी तुम बेबी से बात करो, ask the baby to come out. तो we did that, and it felt really weird कि यार जो बच्चा सुन भी नहीं पा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं बेबी प्लीज बाहर आ जाओ। क्यों नहीं सुन पा रहा है भाई, सब सुनता है बेबी। सुन तो पा रहा है, बस उस इन दैट मोमेंट आई सेड यार ये क्या है, लेकिन खैर बोला जो करना है करेंगे। फाइनली जब बेबी का हेड बाहर आ गया, इट वाज अ ह्यूज रिलीफ, ह्यूज, यानी हेड बाहर आना ही वाज ह्यूज रिलीफ ऑन माय दैट पार्ट। एंड देन द बेबीज बॉडी केम आउट स्लोली इन अ मिनट और टू, राइट, ज्यादा टाइम नहीं लगा था बॉडी बाहर आने में, एंड इट केम ऑल बाय बेबी इटसेल्फ। बेबी का फेस पहले आया, एंड फिर थोड़ा सा शोल्डर आया, but the people in the house wanted me to do something wherein Yeah, I did even I not do wanted it. you to take the baby out. Even Yeah, I wanted it. but I said the baby is going to do its rotation and the baby is going to come out. It did Yeah, rotate. it She did. did It did rotate. rotate. She rotated by herself. She came by herself. Yani it was something like एकदम अलग ही था. Next level feeling थी यार. The baby came out, alhamdulillah. अच्छा खासा बेबी मेरा, हेल्दी मतलब 2.7 kg की थी, लेकिन अच्छा हुआ छोटी सी बेबी थी, इजीली बाहर आ गई। आई डेंट हैव एनी टीयर्स, छोटा मोटा टीयर था आई थिंक, इन वो भी इनसाइड था जो बाहर से नहीं था। एंड मैंने बेबी का माउथ खुद सक करके क्लीन किया। देन बेबी वाज डायरेक्टली ऑन माय चेस्ट। आई हैड ड्रीम दिस होल माय प्रेगनेंसी, एंड समथिंग आई वुड से दैट मेरे ख्वाबों में भी पूरे प्रेगनेंसी के एंड में यही आता था कि आई डिलीवर्ड माय बेबी नॉर्मली, vaginally, and the baby was out। और मैं उठती थी, एंड और ख्वाब में मैं ये देखती थी मुझे लड़का हुआ। अच्छा। ख्वाब में आई यूज्ड टू सी दैट द बेबी के मैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, एंड इट वाज अ बॉय। एंड देन मेरे डिलीवरी से कुछ वक्त पहले फरजाना थी, उसकी डिलीवरी हुई थी। तो शी टोल्ड मी कि मुझे ख्वाब में आता था मैंने नॉर्मल डिलीवरी कर ली और लड़की हुई। आई टोल्ड हर हाँ मुझे लड़का आता है, इसका मतलब मुझे लड़की होने वाली है। एंड एक्चुअली वही हुआ। अरे फ्रिज के ऊपर, एंड देन वो बाहर आई, and I was so tired. I kept her on my chest. I took 2 pictures with her. My sister took for me. And then I said, I'm too tired to get this placenta out. I want to sleep. And still everyone was like, "Tei placenta nahi aaya, nikalo, nikalo." मेरी सास, मेरी माँ। फिर मैं सो गई। मैंने कहा नहीं भाई अब मेरे अंदर ताकत नहीं है। अब मैंने, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट 26-27 hours इन लेबर। तो द प्लेसेंटा वी सेड आएगा आराम से। सो गए। श्रेया भी सो गई, मैं भी सो गई, बेबी को ब्रेस्ट फीड करा के। बेबी ने बहुत सारी पॉटी करी। बाहर आने के बाद आई चेक द जेंडर ऑफ द बेबी माई सेल्फ। इनफैक्ट जब वो बाहर आ गई किसी को पढ़ी भी नहीं थी कि लड़की हुई कि लड़का हुआ, सबको यही खुशी थी कि बच्चा हो गया भाई नॉर्मली। किसी ने चेक ही नहीं किया कि लड़की हुई कि लड़का। मैंने कहा अरे यार देखो तो सही लड़की है लड़का। देन आई चेक्ड विद माई हैंड एंड इट वाज अ गर्ल। यानी देखो ना, इधर ही बड़ी चीज हो गई। एक्चुअल में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की हो रही है लड़का हो रहा है, बस अच्छा हो गया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं सो गई। आई वोक अप एट 9 o'clock। स्नेहा वोक अप। स्नेहा ट्राइड टू पुल अ लिटिल बिट, बट आई वाजंट फीलिंग कंफर्टेबल। फिर स्नेहा ने कहा एक बकेट के ऊपर बैठो एंड देन ट्राई टू पुश इट आउट। वो भी नहीं जम रहा था। आई टोल्ड स्नेहा कि मुझे जाना है फॉर सुसु, एंड शी सेड नहीं हो सकता है तुम्हें चक्कर आ जाए, क्योंकि एक का हुआ था ऐसा, बीपी लो हो गया चक्कर आ गया। आई सेड नो आई एम फीलिंग फाइन, आई कैन गो। एंड डिलीवरी के फौरन बाद मेरी सास ने मेरे लिए आटे की रब बनाई थी। आटे को घी में फ्राई करके दूध डाल के शक्कर डाल के वो पिलाया था फॉर एनर्जी। वो पिया था। सो आई वाज ईटिंग एंड आई वाज फीलिंग ओके। सो आई वाज लाइक नहीं मैं जाऊंगी टॉयलेट। आई वेंट टू द टॉयलेट। आई सैट ऑन द टॉयलेट। स्नेहा हेल्ड द बेबी
attached to my umbilical cord and placenta inside me. Then I sat on the toilet. I poured a little water on myself with the spray. I kept pouring it, spraying myself with water so that I could pee and not feel that burning sensation. And after I peed, I finally had this contraction. I screamed and the placenta fell out. Yeah, Yeah. I screamed and then the placenta fell out and और मेरी आप सास ने placenta को उठाया. नहीं नहीं आपने ही उठा के दिया एंड देन फिर हमने या मैं क्योंकि मेरे हाथ में ताकत नहीं लग रही थी. ओह यस, बिकॉज आई वाज ऑन माय ऑल फोर्स. मुझे यहाँ पे कुछ हो गया था, पता नहीं कुछ नस में कुछ हो गया था. आई हैड टू गेट इट ट्रीटेड. बस पट्टा बांध के ट्रीटमेंट हो गया था उसका. लेकिन बॉडी में से जान खत्म हो गई थी और उंगलियां इस तरह की हो गई थी मेरी. या या नहीं मेरी उंगलियां एक्चुअली टूट आप जो है ना बहुत ऑल फोर्स में टॉयलेट सीट पे बहुत प्रेशर दे रहे थे व्हेन यू वर बहुत इन ज्यादा. 2 आवर्स यस, तो उस वजह से आप पे सुन हो गया था सुन हो गया था एंड इट वाज सुन फॉर लाइक अ वीक. या खैर अल्हम्दुलिल्लाह. बरी रहा प्लीज, 2 मिनट so हो गया. placenta was born after 3 hours and then we came on the on the bed फिर And उसके it was a बाद topic in my house. या It was a topic in my house कि प्लेसेंटा 3 घंटे बाद आया भाई. या And then even my that Puppi Sas, जो doctor है, she called me to listen to my birth story the same night. She called me and she listened to my birth story. And she was like, yes, it is actually possible. But the doctors do not wait for that long. You guys waited. Your doula waited, your midwife waited, but actual में doctors इतना wait नहीं करते, इतना slow process से काम नहीं करते. इस वजह से इन लोग vaginal births में fail हो जाते हैं. और या तुम्हारी डूला ने तुमको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया पेन के लिए कि पेन बढ़े या कुछ हो. तुम लोगों ने बहुत पेशेंटली काम किया, इस वजह से तुम्हारा हो गया. आई सेड ऑब्वियसली ये नेचर्स वर्क है, ये तो इसी तरह ही हो सकता है. if we do let the nature do what it needs to do. डिलीवरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग वाज गुड. माय फादर इन लॉ इंसिस्टेड कि एक बार जाके डॉक्टर को चेकअप करा लो. सो आफ्टर 3 to 4 days आई वेंट टू द डॉक्टर. चेकअप कराया. शी सेड छोटा सा टीयर है, इनसाइड है, सेल्फ हीलेबल है और 4 दिन हो गया तो मैं कुछ करूंगी भी नहीं. आई विल लेट इट हील. एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी पहले के लोग तो घर पे ही बच्चा पैदा करते थे. अब तो हो गया ना. so yeah देन ओके हो गया वो भी सब अल्हम्दुलिल्लाह. बट दिस गैस्ट्रिक पेन इट वाजंट गोइंग अवे. सो इन दिसंबर मैंने फिर से मेरी सोनोग्राफी भी पता चला मेरे गॉल ब्लैडर में छोटे 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 स्टोन्स है, इस वजह से मुझे गैस्ट्रिक हो रहा है बार बार. एंड देन अपेंडिसाइटिस है. फिर सिटी स्कैन हुआ एंड देन मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ थी. स्नेहा ने भी कहा ट्राई होम्योपैथी, but I couldn't bear the pain. So then I finally had that surgery. I had my gallbladder removed via laparoscopic surgery in December, 23rd December. No, I'm well and good, alhamdulillah. And something I want to say, कि when you do this natural process के साथ and तो तुम्हारे नीचे वाले पार्ट को हील होने में टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस. मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझे सबने बहुत बताया था कि हाँ इट्स समथिंग वेरी ग्रेट जब हम कर लेंगे. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नीचे क्या होने वाला है डिलीवरी के बाद. तो ये मैं चाहती हूँ कि हर किसी को पता हो कि हीलिंग टेक्स टाइम. देयर इज ट्रॉमा समटाइम्स ऑन योर vagina, but it heals. You will feel really weird down there for at least 2 3 days, but then it gets back to normal and it heals. And बाकी hot compresses लेना बहुत जरूरी है. Sids bath लेना बहुत जरूरी है. I took Sids bath with Epsom salt, which is जेल वगैरह डाल के. Yeah, and बस I think. yeah and you also called your daughter as she was born Hafsa तो आप क्लियर थी अगर बेटी है तो she was Hafsa Yeah, I was very clear actual में. मैं मेरी सेकेंड डॉटर के टाइम हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़की होने वाली है. हमने सोचा था लड़का ही होगा. तो मैं उस वक्त भी हफ्सा सोचा था नाम, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बुशरा रख दिया था as soon as she was born because मैं सी सेक्शन में थी, मैं बेहोश थी.
तो सेकंड वाला का दूसरा रखा था, लेकिन ये टाइम आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि हफ्सा मुझे हफ्सा ही रखना है। और फिर मेरी बर्थ एजुकेटर का नाम भी हफ्सा था, एंड शी सच अ नाइस पर्सन माशाल्लाह। Yeah, तो alhamdulillah. आई वाज वेरी क्लियर कि हफ्सा होगा। तो जैसे ही बेबी बाहर आई, बस हफ्सा बाहर आ गई। हफ्सा हफ्सा हफ्सा। एंड Yeah. हफ्सा का मतलब है यंग लायननेस। सो या छोटी सी शेरनी। वो है शेरनी। Great, great. Alhamdulillah, it was such a nice, refreshing, all those moments. या And any questions? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? Yeah, so someone is saying I was not able to come over my father's that actual में someone told me this all that happens gallbladder में जो मेरे हुआ, it is always related to unhealed trauma, and my father's death was actually a unhealed trauma जिसके बाहर मैं आ ही नहीं सक रही थी. In fact, समन से बात करने के बाद I was able to work on it. अच्छा. समन के वर्ड्स माशाल्लाह ऐसे उनके अंदर है ना, उनके भी वर्ड्स में बहुत तासीर है. व्हाटएवर शी सेज इट हिट्स द पॉइंट. हम्म. एंड देन आई वाज फाइनली एबल टू ओवरकम दिस थिंग. अप्पू की दैट इज समथिंग आई हैड नॉट ओवरकम अभी तक. अब जाके आई वाज एबल टू वर्क ऑन दैट फीलिंग्स. सो यस, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी बेटर. Beautiful. So, किसी को कुछ कहना है सर? बेटे ससुराल कौन खत्म करता है? गुड गर्ल है तो सबसे पहला करता है। ऐसे एक बैड बॉय। Okay. So yeah, like for me, this was a VBAC 2C for the second time. So Alhamdulillah, yeah, I would mention that yes, she was one of the most gorgeous mother I have seen in labor. So मतलब पता नहीं बहुत वो and her sister was saying, स्नेहा बाजी, मैं जब नहीं पहुंची थी तो मैंने बोला कुछ दिख रहा है क्या उसके फेस पे? तो शी इज लाइक नहीं, उसके फेस पे बहुत नूर दिख रहा है, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. एंड शी कॉल्स हर सिस्टर एज हर बाबी डॉल एंड सब. तो बहुत इनके पीछे बहुत प्यार है माशाल्लाह. बट देन एक्चुअली वो बहुत ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरती से शी वाज टेकिंग हर लेबर. एंड और आई वाज ग्लैड दैट वो वोकलाइजेशन रियली हेल्प हर, क्योंकि वो अपने आप को इतना मतलब पूरा लेबर आफ्टर द वाटर ब्रेक शी वाज जस्ट कीपिंग इट हर काम, एंड किसी को पता ना चले, किसी को कुछ पता नहीं. एंड एक्चुअली शी वाज स्लीपिंग वेल, तो वो भी था कि वो अच्छा सोई भी है, रेस्ट भी कर रही थी. जब जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था तब वो ओके हो जा रही थी. बट जैसे उसको वो स्पेस मिला एंड हम मदर वाज काइंड ऑफ नहीं नहीं आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो. एंड वी वर लाइक अब ये टाइम है उसका आवाज करने का, लेट हर मेक दैट नॉइज. एंड दैट रियली वर्कड फॉर अस, दैट स्पेस वेयर कोई उसको जज नहीं कर रहा था, उसको अपने हिसाब से अपनी आवाजें निकाल रही थी. सो आई एम ग्लैड दैट हम ये सारा चीज कर पाए. मुझे लग रहा है मैं इतना ज्यादा ड्यूरिंग जब पुशिंग स्टेज आ रहा था आई वाज एक्चुअली नॉट स्क्रीमिंग बट लेटिंग आउट द पेन, एंड इट वाज लाइक अ roar, like a loud roar. So yeah, and also मैं constantly दुआ पढ़ रही थी, अल्लाहुम्मा ला सहला पढ़ रही थी. हफ्सा बाजी ने कहा था पढ़ने, एंड हफ्सा बाजी ने अपने कोर्स में ये भी बताया था कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन यू शुड थैंक अल्लाह बिकॉज इट इज टेकिंग यू क्लोजर टू द बर्थ. एंड अल्लाह ताला बोलते हैं तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुमको और दूंगा, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड मोर टू डिलीवर द बेबी. सो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह अपने मन में अपने जबान पे रख रही थी, एंड देन आई वाज रिसाइटिंग अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला. ये मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ रही थी. सो दिस वाज अनदर थिंग दैट आई थिंक हैव लेड माय बर्थ, played a huge role. Like iman, actual में your faith, no matter what is your religion, everyone has faith in something, and if you have that faith you can do this. It's all about faith and letting go of your fears. So thank you so much, Fatima. Jazakallah khair. I know your daughters are waiting there. Thank Yeah, you so much, Hafsa baby, for not crying in the middle of all of this, the story session. And I know she's been taken care of, but you got to go to your children again. yeah, Thank you everyone for joining in. Inshallah, inshallah, we have many mothers who, who are supposed to come and tell the story, but it's just that
I have to figure out time for it. Inshallah, we'll get back on track. So January passed and there was no story session. We're starting February fresh, inshallah. So let's hope for the next storytelling session, inshallah. Jazakallah khair. Thank you so much, everyone. Bye bye. Bye. Love. Yes.